Hello students, I hope you all are fine. I am Priyanka. Welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss the next chapter of corporate governance, that is corporate governance framework in India. So let us begin with the topic. So first comes the need for corporate governance in India. As we know, corporation में different parties होंगी who are involved in the organization like stakeholders, customers, employees, investors, partners, vendors, government and society. So in the changed scenario in Indian corporation, as also a corporation should be fair and transparent to its stakeholders in all its transactions. So for the fairness and so for the transparency, it is essential कि good corporate governance की practices adopt हों in the organization. So good corporate governance leads to the sustainable business environment. Corporate governance means a set of rules and regulations or the system by which the companies are directed and controlled. So corporate governance की need arise हुई in every organization in India in order to bring fairness, transparency in all the transactions of the corporation. So first comes corporate governance reforms in India, or we can say corporate governance initiatives in India. So Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India ने कुछ initiatives लिए related to the corporate governance. So first formal regulatory framework for the listed company for corporate governance was established by SEBI in February 2000, following the recommendations of Kumar Mangalam Birla Committee report. So SEBI is maintaining the standards of corporate governance through other laws like Securities Contract Regulation Act 1956, SEBI Act 1992 and Depository Act 1996. So different committees बनाई गई and इन committees की recommendations ली गई by the Ministry of Corporate Affairs, by SEBI, by the Depository Act. So first committee comes Confederation of Indian Institutes Committee. So it set up a task force in 1995 under Rahul Bajaj, a reputed industrialist. In 1998, Confederation of Indian Industries released the code of conduct called Desirable Corporate Governance. So it was first to criticize the nominee directors and suggested dilution of government stake in companies. तो सबसे पहले कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस में फ़र्स्ट पॉइंट किसका आया? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का, जो कि सेटअप की गई 1995 में अंडर राहुल बजाज, जो कि एक रिप्यूटेड इंडस्ट्रियलिस्ट थे. और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने एक कोड रिलीज़ किया विच इज़ कॉल्ड डिज़ायरेबल कॉरपोरेट गवर्नेंस. नेक्स्ट कमिटी बनाई गई कुमार मंगलम बिरला कमेटी. सो इन 1999 सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कमेटी सेटअप की अंडर श्री कुमार मंगलम बिरला, member of Securities and Exchange Board of India, to promote and raise the standards of good corporate governance. So इनकी रिपोर्ट सबमिट हुई as the first formal attempt to evolve a code of corporate governance in the context of prevailing conditions of governance in Indian companies. So इस कमेटी ने 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेट किया एज अ कॉरपोरेट गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट. सो इस कमेटी में कुछ मैंडेटरी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की गई एज दीज रिकमेंडेशंस अप्लाइज टू द लिस्टेड कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल होगी ₹3 करोड़ एंड अबव. नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें कॉम्बिनेशन होगा एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का. नेक्स्ट एक ऑडिट कमेटी होगी जिसमें 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे.
with one having financial and accounting knowledge. रेम्यूनरेशन कमेटी होगी. बोर्ड का प्रोसीजर कैसा होगा? एटलीस्ट 4 मीटिंग्स कंडक्ट होंगी बोर्ड की इन अ ईयर विद अ मैक्सिमम गैप ऑफ 4 months बिटवीन 2 मीटिंग्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी टू रिव्यू दी ऑपरेशनल प्लान्स, कैपिटल बजट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस आउट करना. मिनट्स सेटअप किए जाएंगे कि बोर्ड की मीटिंग कितने मिनट्स के लिए होगी, नंबर ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे. डायरेक्टर शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 10 कंपनीज एंड शेल नॉट एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ मोर देन 5 कमिटीज़ अक्रॉस ऑल कंपनीज. नेक्स्ट मैनेजमेंट डिस्कशन होगी एंड रिपोर्ट को एनालाइज किया जाएगा कवरिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक अपॉर्चुनिटीज़, रिस्क्स, थ्रेट्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी विद द शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट कम्स द नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी. Role of chairman, remuneration committee of board. Shareholders right for receiving the half yearly financial performance postal ballot covering the critical matters. Sale of whole or substantial part of the undertaking. Corporate restructuring, further issue of capital, venturing into new business. तो ये नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशंस थी कमेटी की. नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स होगा वो कंपनीज़ एक्ट 1956 में कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं. कुछ पीरियोडिक रिव्यूज़ हुए, कुछ अमेंडमेंट्स हुई इन द कंपनीज़ एक्ट 1956 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. 1999 में इस एक्ट ने कुछ प्रोविजंस इशू किए, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की टू द शेयर होल्डर्स, टू द इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट कम्स द नरेश चंद्र कमिटी. नरेश चंद्र कमिटी सेटअप की इन अगस्त 2002 by the Department of Company Affairs under the Ministry of Finance and Company Affairs to examine the various corporate governance issue. एंड इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट किया इन दिसंबर 2002 and it made recommendations in the 2 key aspects of the corporate governance. First is financial and non-financial disclosure and second is independent auditing and board oversight of management. कुछ कमेटी की recommendations थी which is related to disqualifications for the audit assignments, list of prohibited non-audit services, independent standards for consulting and other entities, compulsory audit partner rotation, auditors disclosure of contingent liability, qualifications and consequent action, managers certification in the event of auditors replacement, appointment of auditors, minimum board size of listed companies, defining an independent director, additional disclosure to directors, audit committee charter, SEBI and subordinate legislation, etc. Next comes Narayan Murthy Committee. SEBI appointed Narayan Murthy Committee in 2002. Its report mainly focuses on and makes mandatory recommendations regarding the responsibilities of audit committee, quality of financial disclosure, requiring board to assess and disclose the business risk in the company's annual reports. तो ये कमेटी को अपॉइंट किया सेबी ने इन 2002 एंड इनकी रिपोर्ट्स ने फोकस किया मेनली ऑन द मैंडेटरी रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग कि ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हों, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर कैसे हो, किस मैनर में हो एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कैसे सभी बिजनेस रिस्क को डिस्क्लोज़ करना है इन द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट्स. तो मैंडेटरी रिकमेंडेशंस ने फोकस किया ऑन strengthening the responsibilities of audit committee, improving the quality of financial disclosures, requiring the corporate executive boards to assess and disclose the business risk in the annual reports, introducing the responsibilities on board to adopt formal code of conduct,
stockholder approval and improved disclosures related to the compensation paid to the non-executive directors and non-mandatory recommendations दी इस कमेटी ने which is related to instituting a system of training of board members and evaluation of their performance. Next comes clause 49 of the listed agreement. So based on the recommendations of Kumar Mangalam Birla committee, clause 49 insert किया गया in the listing agreement in 2000. So as per the clause 49 of the listing agreement, कुछ की requirements insert किए गए इस clause 49 में. First is board independence. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे कंपनी में वो कॉम्बिनेशन होगा एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का विद नॉट लेस देन 50% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइजिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा तो बोर्ड का जो 1/3 पार्ट होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का हो, और अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों. सो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे वो एक सेपरेट मीटिंग कंडक्ट करेंगे अपनी एटलीस्ट वंस इन अ ईयर to express their opinion freely and independently. Next, code of conduct. Code of conduct बनाया जाएगा for the board members and senior managers and which should be posted on the website of the company. तो जो board of directors होंगे, जो senior management होगी, वो bound होगी to comply with these rules and regulations. And next comes the audit committee. द क्लॉज रिक्वायर्स ऑडिट कमेटी जिसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए एज अ मेंबर्स एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों. ऑडिट कमेटी का मेन पर्पस क्या होगा? अपॉइंटमेंट करना, मॉनिटरिंग करना ऑडिटर्स की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना कंपनी के अफेयर्स की एंड विसल ब्लोअर मैकेनिज़्म की रिव्यू करना. नेक्स्ट, डिस्क्लोजर. जो लिस्टेड कंपनीज़ होंगी उन्हें पीरियडिकली डिस्क्लोजर करना होगा सभी मटेरियल फैक्ट्स का टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी. नेक्स्ट, कंपल्सरी विसल ब्लोअर मैकेनिज़्म. तो न्यू क्लॉज में कंपल्सरी किया गया कि जो कंपनीज़ हैं उनको एक विसल ब्लोअर मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश करना होगा टू प्रोटेक्ट the investors and other parties from the unethical behavior and frauds. So एक mechanism establish किया जाए to prevent victimization of the whistleblower. Next, CEO certification. जो CEO होगा और जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा और जो मैनेजर होगा उन्हें सर्टिफाई करना होगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी कि जो भी अफेयर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो फेयर हैं एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेगी फॉर द इंटरनल कंट्रोल्स. नेक्स्ट, एनुअल रिपोर्ट्स. एनुअल रिपोर्ट्स में ये मेंशन करना होगा लिस्टेड कंपनीज़ को कि उन्होंने सभी नॉर्म्स को विच आर रिलेटेड टू द कॉरपोरेट गवर्नेंस सबको फॉलो किया है. नेक्स्ट, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी सेटअप की जाएगी in order to determine the qualifications, positive attributes and independence of the director. and इस पॉलिसी में ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि who are qualified to be appointed as directors. नेक्स्ट, वुमेन डायरेक्टर. इन द लाइन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 तो जो क्लॉज है इसने मैंडेटरी किया कि एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर हो इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट कम्स द वॉलेंट्री गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स. दिसंबर 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इशू की कुछ वॉलेंट्री गाइडलाइंस ऑन द कॉरपोरेट गवर्नेंस फॉर द वॉलेंट्री adoption by the Indian corporate sector. So few guidelines are: first, board of directors. कंपनी को फॉर्मल लेटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट इशू करने होंगे टू द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स
जिस लेटर में क्या स्पेसिफाई होगा, उनकी टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, उनसे एक्सपेक्टेशंस, उनकी ड्यूटीज़, उनकी लाइबिलिटीज़, इंश्योरेंस कवर, कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स और लिस्ट ऑफ एक्शंस विच आर डायरेक्टर्स शुड नॉट डू एंड उनकी रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इनके रोल्स को सेपरेट किया जाए टू प्रमोट द बैलेंस ऑफ द पावर। जो चेयरमैन हो और जो चीफ एग्जीक्यूटिव हो वो सेपरेट पर्सन्स हों। नेक्स्ट, नॉमिनेशन कमेटी को सेटअप किया जाए विद द मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इट्स चेयरमैन, सो दैट कि एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन हो पाए बिटवीन द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कंपनीज इन विच एन इंडिविजुअल में बिकम अ डायरेक्टर। सो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर्स होंगे, प्राइवेट कंपनीज में होंगे। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होंगे? जिनका कोई भी पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं होगा कंपनी के साथ, बट जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, एक्सपर्टाइज होगा, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होंगे, मैनेजरियल क्वालिटीज़ होंगी एंड सर्टिफिकेट होगा इंडिपेंडेंस का। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में ये एबिलिटी होगी कि कैसे मैनेज करना है सभी चीज़ों को एंड जिसके पास कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी होगी। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो डायरेक्टर्स होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, उनको एक फ़िक्स्ड फ़ी पे की जाएगी और अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स पे आउट किया जाएगा कंपनी के थ्रू। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्टॉक ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे और जो रेम्यूनरेशन कमेटी होगी इसमें एटलीस्ट 3 मेंबर्स होंगे विद अ मेजॉरिटी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। नेक्स्ट, ड्यूटीज़ ऑफ बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या होंगी कि डायरेक्टर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन्हें नॉलेज देना रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, उन्हें टाइम टू टाइम सुटेबल मेथड्स बताना। नेक्स्ट, एनेबलिंग क्वालिटी डिसीज़न मेकिंग, उन्हें प्रोसीजर्स के बारे में बताना, सिस्टम्स के बारे में बताना कि कैसे उन्हें गुड क्वालिटी डिसीज़न मेकिंग करनी है। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट, उनको रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स बताना कि कैसे उनको रिस्क को मैनेज करना होगा। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये ड्यूटी है कि टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की। नेक्स्ट, कंप्लायंस विद द लॉज, सभी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना, एज़ पर द नॉर्म्स वर्क करना इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लायंस कंट्रोल्स को रिव्यू करना, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को रिव्यू करना। नेक्स्ट कम्स द ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड। ऑडिट कमेटी में एटलीस्ट 3 मेंबर्स होंगे विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन द मेजॉरिटी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा एज अ चेयरपर्सन और जिसका मेन काम क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को रिव्यू करना, इंटरनल ऑडिट फंक्शन करना, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को रिव्यू करना। नेक्स्ट, ऑडिटर्स। जो ऑडिट कमेटी होगी उसका मेन फंक्शन क्या होगा, ऑडिटर्स को सिलेक्ट करना, उनकी अपॉइंटमेंट करना। सभी ऑडिटर्स के पास एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें उन्होंने अपने स्टेटस के बारे में मेंशन किया होगा एंड उनका रिलेशन कितने टाइम से है कंपनी के साथ ये भी मेंशन किया होगा। जो एक ऑडिटर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सभी डॉक्यूमेंट्स को, सभी रिकॉर्ड्स को, सभी स्टेटमेंट्स को फेयरनेस के साथ चेकआउट करना। तो जो कमेटी होगी वो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ मैकेनिज़्म फॉर विसल ब्लोइंग। तो जो कंपनीज़ हैं उन्हें ये एश्योर करना है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में विसल ब्लोअर मैकेनिज़्म भी हो सो दैट कि जो अनएथिकल बिहेवियर होगा बाय एनी पार्टी उसकी रिपोर्ट इमीडिएटली हो पाए टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। सो कंपनी को डिफरेंट प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने हैं इन ऑर्डर टू सेफगार्ड
the interest of the different parties against victimization of the employees who are avail of the mechanism. Next, amendments in the Companies Act 2013. So Companies Act 2013 में कुछ amendments हुई. First comes emphasis on the corporate social responsibility. Nowadays we know corporate social responsibility is becoming most important. जो एक कॉरपोरेशन है, जो एक कंपनी है, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है टुवर्ड सोसाइटी कि उन्हें सभी एक्टिविटीज़ को एथिकल मैनर में कंडक्ट करना है और कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं परफॉर्म करनी जिससे कि सोसाइटी को हार्म हो. एज़ वी नो बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी टुवर्ड सोसाइटी. सो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी बनाई गई बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर्स. एटलीस्ट उनमें से एक डायरेक्टर क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा. तो CSR कमिटी को फॉर्मुलेट किया गया और CSR पॉलिसी बनाई गई सो दैट कि कंपनी ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे, ऐसे एफर्ट्स करे जिनका मैक्सिमम बेनिफिट्स हो टू दी सोसाइटी. नेक्स्ट, क्लास एक्शन सूट्स. कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, डिफरेंट स्टेप्स लिए गए सो दैट कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए. कुछ प्रोविजंस बनाए गए इन सेक्शन 37 एंड 245 ऑफ द एक्ट कि जो भी डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स या एक्सपर्ट्स जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे, जो अनएथिकल बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उनके अगेंस्ट क्या हो, एक सूट फाइल हो. नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. सो एज पर सेक्शन 195 ऑफ द कंपनीज एक्ट कोई भी पर्सन या कोई भी डायरेक्टर एंटर नहीं होना चाहिए टू द इनसाइडर ट्रेडिंग. अगर इन केस उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व किया खुद को तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा एंड उसे इम्प्रिजनमेंट भी होगी. एंड अगर उसने इन सेक्शंस के प्रोविज़न को वॉयलेट किया तो भी वो पनिशेबल होगा और उसे इम्प्रिजनमेंट होगी. नेक्स्ट, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस. सो एज़ पर सेक्शन 211 ऑफ द कंपनीज एक्ट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को सेटअप किया गया. इस ऑफिस को एस्टैब्लिश किया गया by the central government which is called Serious Fraud Investigation Office to investigate the frauds relating to the company. So different experts को अपॉइंट किया गया इस ऑफिस में which are experts in the following fields like banking, corporate affairs, taxation, capital market, auditing, information technology, law and other fields. Next comes the independent directors. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होंगे जिनका कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बट जो अपनी फील्ड में एक्सपर्टाइज होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे. तो एटलीस्ट टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स में से एटलीस्ट 1/3 टोटल मेंबर ऐसे होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों. एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने भी सभी प्रोविजंस को फॉलो करना होगा, उन्हें भी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होगा उन्हें. नेक्स्ट, ऑडिट कमिटी. द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द सेटअप ऑफ एन ऑडिट कमिटी बाय द कंपनीज. सो ऑडिट कमिटी भी सेटअप होगी इन द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स होंगे विद मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. एक चेयरमैन होगा. नेक्स्ट, प्रॉपर एक सिस्टम होगा, एक मैकेनिज़्म होगा. इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय ऐसा है जो डिफ़ॉल्ट करेगा, इन प्रोविजंस को नहीं फॉलो करेगा एक्ट के, तो उससे फ़ाइन लिया जाएगा, उस पर फ़ाइन इम्पोज होगा विच में एक्सटेंड्स टू ₹5 लाख. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो. आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन इंडिया, जिसमें हमने सबसे पहले स्टडी किया कॉरपोरेट गवर्नेंस
रिफॉर्म्स इन इंडिया और वी कैन से इनिशिएटिव्स इन इंडिया। नेक्स्ट हमने स्टडी किया क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट। नेक्स्ट वॉलंटरी गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट हमने स्टडी की अमेंडमेंट्स इन द कंपनीज एक्ट। थैंक यू सो मच।